کریم بخش ایک عزتدار اور مالدار زمیندار تھا۔ اس کے وسیع و عریض کھیت، حویلی اور بے شمار مویشی گاؤں میں اس کی حیثیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ ایک نیک دل اور انصاف پسند شخص تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ بھی ایک محبت کرنے والی عورت تھی جو اپنے 3 بچوں علی، حسن اور زینب کے لیے ہر خوشی چاہتی تھی۔ یہ خاندان نہ صرف مال و دولت میں خوشحال تھا بلکہ آپس میں بے حد محبت کرنے والا بھی تھا۔ علی اور حسن میں گہری دوستی تھی، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ہر خوشی ہر غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ زینب ان دونوں کی لاڈلی بہن تھی اور بھائی ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ کریم بخش کی ایک چاچا زاد بہن رشیدہ جو کہ بیوہ تھی، اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ اپنے مکے کے قریب ایک الگ حویلی میں رہتی تھی۔ عائشہ حسین تھی۔ علی جو اسے بچپن سے پسند کرتا تھا ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی دلہن بنے۔ رشیدہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اس کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جب علی جوان ہوا تو کریم بخش نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی موقع تھا جس کا رشیدہ کو انتظار تھا۔ اس نے کریم بخش سے کہا، بھائی علی کی شادی مجھ سے بڑھ کر کون اچھی جگہ کروا سکتا ہے؟ عائشہ میری بیٹی ہے، تمہاری بھتیجی بھی ہے، اسے اپنی بہو بنا لو۔ کریم بخش کو یہ تجویز پسند آئی کیونکہ وہ اپنی بہن پر بھروسہ کرتا تھا اور جانتا تھا کہ علی بھی عائشہ کو پسند کرتا ہے۔ علی بھی خوش تھا مگر فاطمہ کریم بخش کی بیوی یہ رشتہ قبول کرنے پر راضی نہ تھی۔ فاطمہ نے پریشان ہو کر کہا، کریم بخش تمہیں رشیدہ کی نیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ صرف دولت کے پیچھے ہے۔ کریم بخش نے جواب دیا، فاطمہ رشیدہ میری چاچا زاد بہن ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچ سکتی، اور علی بھی تو عائشہ کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں اس رشتے سے پیچھے کیوں ہٹنا چاہیے؟ فاطمہ جانتی تھی کہ باز کرنا بیکار ہے کیونکہ علی بھی تو یہی چاہتا تھا۔ آخرکار وہ خاموش ہو گئی مگر دل میں ایک انجانا خوف محسوس کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن کریم بخش نے فیصلہ کیا کہ علی کی شادی دھوم دھام سے کی جائے۔ پورے گاؤں میں اس کی شادی کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے زمیندار کی اولاد کی شادی تھی، جشن تو بنتا تھا۔ علی اور عائشہ کی شادی گاؤں میں شان و شوکت سے ہوئی۔ کئی دن تک جشن کا سامان رہا۔ حسن اور زینب بھی خوش تھے۔ حسن اپنے بھائی کی ہر تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا کیونکہ وہ علی کو بے حد چاہتا تھا۔ لیکن خوشی کے یہ لمحے زیادہ دیر نہ رہے۔ شادی کے چند ہفتے بعد کریم بخش اور فاطمہ شہر گئے مگر واپسی پر ان کی گاڑی کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ علی اور حسن اور زینب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حسن بہت صدمے میں تھا اور زینب تو اپنے والدین کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ علی بھی غمزدہ تھا مگر اس کی بیوی عائشہ اور ساس رشیدہ کسی اور ہی چال میں مصروف تھیں۔ علی، حسن اور زینب پر والدین کے بچھڑنے کا دکھ بہت بھاری تھا۔ کریم بخش کی موت کے بعد زمینوں، حویلی اور دولت کی ذمہ داری علی کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ اپنے والد کی طرح سمجھدار تو نہ تھا مگر حسن اور زینب کا خیال رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ کریم بخش اور فاطمہ کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد رشیدہ نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اب گھر کا سربراہ علی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ میں بھی ماں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ اب پہلے کی طرح علی سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ اسے قابو میں رکھنے کے لیے جذباتی چالیں چلنے لگی۔ وہ ہر وقت علی کے ساتھ حسن اور زینب کی برائیاں کرتی تھی تاکہ علی کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو۔ اب رشیدہ بیٹی کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ اس نے علی سے کہنا شروع کیا، بیٹا تمہارے والدین کے بعد اب میں ہی تمہاری ماں ہوں، مجھے تم سب کی فکر ہے۔ زمینوں کی دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں، تمہیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ رشیدہ کی اصل چال یہ تھی کہ وہ علی کو حسن اور زینب سے الگ کر کے ان کی دولت کی زیادہ حصے پر قبضہ حاصل کرے تاکہ علی کی دولت کا زیادہ حصہ اس کی بیٹی عائشہ کے حصے میں آئے۔ رشیدہ نے علی کے دل میں حسن اور زینب کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے مختلف چالیں چلنا شروع کی۔ وہ علی سے ہمیشہ حسن اور زینب کی شکایتیں کرتی، انہیں بدصورت انداز میں پیش کرتی اور بتاتی کہ یہ دونوں ان کے مفاد کے خلاف ہیں۔
इस तरह अली का दिल अपने भाई और बहन से दूर होता गया और वो रशीदा और आयशा के जाल में आकर इनके फैसलों को तस्लीम करने लगा। कुछ ही दिनों में रशीदा ने घर के मामलात में अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नौकरों पर हुक्म चलाने लगी। रशीदा ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और माली हिसाब और किताब में दखल देने लगी और हर फैसले पर अपने राय थोपने लगी। हसन, जो शुरू ही से चीजों को गौर से देखता था, इसे रशीदा के रवैये में बदलाव साफ महसूस होने लगा था कि इसने कई बार अली को समझाने की कोशिश की, मगर अली हर बार यही कहता, हसन, फूफी हमारी बड़ी हैं, उन पर शक करना ठीक नहीं, वो माँ जैसी हैं और आयशा मेरी बीवी है, मुझे उस पर भरोसा है। हसन चुप हो जाता, मगर दिल में शक की चिंगारी सुलगने लगी। उधर ज़ैनब, जो अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, रशीदा की नजर में खटकने लगी। रशीदा ने आयशा से कहा, इसे जल्दी किसी के हवाले कर देना चाहिए, वरना यह भी दौलत में हिस्सा मांगेगी। आयशा ने माँ की बात मानते हुए अली से कहा, ज़ैनब के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो, बेहतर होगा कि वो जल्दी अपने ससुराल चली जाए। ज़ैनब अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, उसकी दिल में शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अली ने रशीदा और आयशा की चाल को समझे बगैर और ज़ैनब की मर्जी के बगैर उसकी शादी के इंतजामात शुरू कर दिए। हसन अब बर्दाश्त की हद पर था। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, वो अली के कमरे में गया और बोला, भाई, तुम्हें होश आना चाहिए, माँ बाप की आखिरी निशानियों को तुम खुद से दूर कर रहे हो। ज़ैनब हमारी बहन है, इसे कहीं दूर भेजना जुल्म है, और फूफी वो अब सिर्फ हमारे ख्वाबों का सौदा कर रही है। रशीदा की चालें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थीं। एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसमें हसन और ज़ैनब की जिंदगी को हिला कर रख दिया था। दर हकीकत रशीदा और आयशा ने एक नया मंसूबा तैयार किया था। उन्होंने जानबूझकर आयशा के जेवर खुद ही चुरा कर ज़ैनब के कमरे की अलमारी में छुपा दिए, ताकि वो इस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। अगली सुबह घर में शोर मच गया। आयशा रोते हुए आवाजें लगाने लगी, मेरा जेवर गायब हो गया है, वो जो माँ ने मेरे लिए रखा था कहीं नहीं मिल रहा। अली परेशान हो गया। वो फौरन नौकरों को बुलाकर कहने लगा, घर के हर कमरे की तलाशी ली जाए। नौकरों ने हर अलमारी, हर दराज छानी, यहाँ तक कि ज़ैनब के कमरे में भी गए। ज़ैनब हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। चंद लम्हों बाद नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, साहेब, जेवर ज़ैनब बीबी के अलमारी से मिला है। ये सुनकर पूरे दर में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब के चेहरे पर हैरत और दुख छा गया। यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, कोई साजिश कर रहा है। मगर अली का चेहरा गुस्से से सुर हो गया। उसने जोर से कहा, ज़ैनब, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, ऐसी हरकत की तुमसे तवक्को नहीं थी। ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगे। भाई, खुदा के लिए यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, ये कोई चाल है, कोई साजिश है। लेकिन अली ने इसकी एक ना सुनी। रशीदा ने जल्दी पर तेल डालते हुए कहा, बेटा, यह बहुत अफसोस की बात है, अगर आज तुम्हारे वालिदैन जिंदा होते तो ये सब देखकर टूट जाते। यह लम्हा ज़ैनब के लिए जिल्लत और बेबसी का था, और हसन के दिल में अब शक नहीं बल्कि यकीन बैठ चुका था कि यह सब रशीदा और आयशा की चाल है। वो गुस्से से भरा हुआ अली के कमरे में गया, जहां अली के साथ रशीदा और आयशा भी बैठे थे। बोला, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अली ने चूक कर हसन की तरफ देखा। क्या बदतमीजी है ये, तुम्हें होश है, किस नजर में बात कर रहे हो? हसन ने भी तलही से जवाब दिया, होश मुझे भी है और तुम्हें भी आ जाना चाहिए भाई। तुमने ज़ैनब पर यकीन करने के बजाय इन दो औरतों की बातों पर यकीन किया, जिन्होंने सिर्फ अपना मुफाद सोचा। आयशा बोली, हसन, तुम हमें बदनाम कर रहे हो, अपनी बहन की चोरी को छुपाने की कोशिश मत करो। हसन ने गुस्से से कहा, चुप रहो तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों ने खुद जेवर छुपाकर ज़ैनब पर इल्जाम लगाया है। रशीदा खड़ी हो गई और चलाकर बोली, यह लड़का हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। अली, कुछ कहो इसे। अली सख्त परेशान था। घर का माहौल एकदम आंधी की तरह बिगड़ चुका था। हसन ने अली के करीब आकर सख्त लहजे में कहा,
याद रखो, हमारे माँ बाप ने हमें साथ जीने और एक दूसरे का सहारा बनने की नसीहत की थी, और तुम अपनी बहन को चोर समझ बैठे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। इस सारे हंगामे और झगड़े के बाद अली कई दिन तक खामोश और गुमसुम रहा। हसन की बातों ने उसके दिल को हिला कर रख दिया था। उसने अपने रवैये पर पछतावा होने लगा, लेकिन अना आड़े आ रही थी। वो रशीदा और आयशा की बातों में आकर अपने बहन भाइयों से दूर हो चुका था और अब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार अली ने एक फैसला किया। वो चाहता था कि मजीद तलही ना बढ़े और हर कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे। उसने ऐलान किया कि वो अपने वालिद करीम बख्श की जायदाद का बाज़ाब्ता बंटवारा करेगा। इसमें ज़मीनों, हवेली और मवेशियों की तफसीलात निकलवाई। फिर अपने बाद की मीरास के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा हसन को दिया, दूसरा ज़ैनब को, और तीसरा जो सबसे बड़ा था अपने पास रख लिया। हसन ने अली को कहा, हमें दौलत की लालच नहीं, बस इज्जत और सच्चाई चाहिए थी। ज़ैनब ने खामोशी से अपने आंसू पूंछे और धीरे से बोली, भाई हम तुमसे शिकवा नहीं करेंगे, बस दुआ है कि तुम सच को पहचान सको। हसन और ज़ैनब ने अपना हिस्सा लिया और बड़े हवेली वाले घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो दोनों गांव ही के एक कोने में वाक़या एक छोटे से पुराने मकान में जा बसे। वो मकान बोसीदा जरूर था, मगर इनके दिल सुकून से भरे हुए थे, क्योंकि अब वो एक साजिशी माहौल से निकल आए थे। इधर अली बड़े घर में रह गया, मगर उसके आसपास वो हुलूस और मोहब्बत का साया नहीं रहा जो कभी हसन और ज़ैनब की मौजूदगी में हुआ करता था। रशीदा और आयशा की साजिश वक्ती तौर पर कामयाब हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन अली हस्बे मामूल जमीनों का जायजा लेने के बाद शाम के वक्त थका हारा घर वापस आया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखकर चौंक गया कि ड्राइंग रूम में एक नौजवान लड़का रशीदा और आयशा के साथ बैठा खुशगपियों में मसरूफ था। लड़का हंस हंस कर बातें कर रहा था और आयशा भी गैर मामूली खुशदिली से उसका साथ दे रही थी। अली के कदम वहीं रुक गए, उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, यह कौन है? रशीदा फौरन बोल पड़ी, बेटा ये मेरी पुरानी सहेली का बेटा बशीर है और हमारी हैरियत दरियाफ्त करने आया था। अली खामोशी से बैठ गया, मगर उसकी नजर आयशा और उस लड़के के अंदाज अतवार पर थी। वो महसूस कर रहा था कि उनके दरमियान कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। एक दिन अली मामूल के कामों के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था। सूरज की तपश कम हो चुकी थी और रास्ता सुनसान सा लग रहा था। वो अपनी सोचों में गुम था कि अचानक 2 नकाबपोश अफराद उसके करीब आए। वो दोनों हंजर और डंडों से लैस थे। उन्होंने अली को मारना शुरू कर दिया। अली ने बचने की बहुत कोशिश की, मगर वो तन्हा था। एक बार उसके बाजू पर लगा और दूसरा कंधे पर। अली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था कि उसी वक्त 2 राहगीर जो वहां से गुजर रहे थे चीख मार कर भागे और हमला आवरों को ललकारा। नकाबपोश फौरन मौका से फरार हो गए। राहगीरों ने अली को संभाला और करीबी डिस्पेंसरी पहुंचाया। अली की जान तो बच गई, मगर वो अंदर से लरज़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन थे। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जख्मों पर मरहम रखने के बाद जब वो शाम को घर पहुंचा तो वो सदमे में था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रशीदा और आयशा घबराकर उसकी तरफ लपकी। रशीदा बोली, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? ये जहन कैसे लगे? अली ने सारी रूदात सुनाई तो आयशा ने फौरन जबान खोली, मुझे तो साफ लग रहा है कि ये सब कुछ हसन का काम है। वो तो वैसे भी नाराज होकर गया था, उसने दुश्मनी निकाली होगी। रशीदा ने गुस्से और चालाकी से अली से कहा, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम सख्त कदम उठाओ। तुम हसन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। जब तक वो कानून के शिकंजे में नहीं आएगा तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। मगर अली खामोश रहा। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। जख्मों से ज्यादा उसकी दिल की चोट महसूस हो रही थी। उसने रशीदा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, हसन ऐसे नहीं कर सकता। वो मुझसे नाराज जरूर हो सकता है, मगर दुश्मनी नहीं कर सकता। रशीदा और आयशा इस बात पर परेशान थी कि अली पर जानलेवा हमला होने के बावजूद
अली का शक हसन और ज़ैनब की तरफ क्यों नहीं गया। अगले दिन नाश्ते की मेज पर रशीदा ने बात छेड़ी, बेटा यह तो वाकई शुक्र का मकाम है कि तुम बच गए, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, मगर एक बात समझ में नहीं आती, हसन और ज़ैनब को तो पता था कि तुम पर हमला हुआ है, फिर भी वो तुम्हें मिलने के लिए और हैरियत दरियाफ्त करने के लिए क्यों नहीं आए। अली चुप बैठा ये सब सुन रहा था। उसका दिल पहले ही जख्मी था, अब ये बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। वो कुछ ना बोला, मगर अंदर ही अंदर उसके एतमाद में दरारें पड़ने लगी। उसे हसन और ज़ैनब का ना आना चुभने लगा। हालांकि सच तो यह था कि उन दोनों को अली पर हमले की इतला नहीं दी गई थी। एक दिन इत्तेफाक से अली और हसन की गांव के रास्ते में आमना सामना हो गया। हसन ने जैसे ही अली को आते देखा तो बगैर किसी तरद्दुद के आगे बढ़कर हुलूस से सलाम किया। अली रुका, मगर सलाम का जवाब देने के बजाय तंजिया अंदाज में बोला, मुझे पता है हसन, तुम मुझे कत्ल तो नहीं करवा सकते, लेकिन कम अज कम मेरी हैरियत पूछने को तो आ सकते थे। हसन ये अल्फाज सुनकर दंग रह गया। अभी कुछ कहने ही वाला था कि अली हंसता हुआ बेनियाजी से पलटा और आगे बढ़ता चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हसन वहीं रुक गया, हैरान और परेशान। कत्ल? कैसा कत्ल? अली को हो क्या गया है? यह सब सोचता हुआ वो तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ और सारी बात ज़ैनब को बता दी। ज़ैनब ने पुख्ता लहजे में कहा, अब हम खामोश नहीं रहेंगे, हम कल खुद हवेली जाएंगे और अली से सच्चाई से बात करेंगे, चाहे वो सुने या ना सुने। अगले दिन जब हसन और ज़ैनब हवेली के कमरे में दाखिल हुए तो जैसे ही इनके कदमों तले जमीन खींच ली हो। अली बेसूद बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा जर्द और होंठों के किनारों से खून टपक रहा था, मगर कमरे का माहौल किसी अलमिये से ज्यादा किसी खुशी का महफल का अक्स पेश कर रहा था। रशीदा, आयशा और बशीर हंसी खुशी बातों में मसरूफ थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हसन की नजरें जैसे इस लड़के से टकराईं, वो चूका, फिर फौरन नजरें चुराकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे रशीदा और आयशा के चेहरों पर भी एक घबराहट सी उभर आई। हसन तेजी से अली की तरफ लपका। अली की हालत देखकर इसका दिल तड़प उठा, मुंह से खून बह रहा था और सांसें मदम हो रही थी। अचानक रशीदा को पागलपन का दोहरा पड़ा। उसने झटके से चाकू निकाला और हसन पर झपट पड़ी, लेकिन ज़ैनब ने बर्द रफ्तारी से आगे बढ़कर रशीदा का हाथ पकड़ा और पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया। रशीदा लड़खड़ाकर फर्श पर गिरी और होती चाकू से जख्मी हो गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि आयशा खौफ से चीख मारकर कमरे से बाहर भाग गई। हसन और ज़ैनब ने देर किए बगैर अली को उठाया और करीबी क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू किया और कई घंटों की अनथक कोशिश के बाद अली की हालत कुछ बेहतर होने लगी। जब वो थोड़ा होश में आया तो डॉक्टर ने संजीदगी से बताया इसे जहर दिया गया था। यह सुनकर हसन का दिमाग सन्नाटे में चला गया। वो मंजर बार बार इसकी आंखों के सामने आने लगा जब अली खून की उल्टी कर रहा था और उधर रशीदा, आयशा और बशीर हंसी मजाक में मशगूल थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान रशीदा, आयशा और बशीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रशीदा तमाम हकीकतें सच सच पुलिस को बयान कर देती है। वो बताती है कि ये सब मैंने ही किया है, मैंने ही आयशा के साथ मिलकर अली को जहर दिया था। दरअसल आयशा और बशीर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर रशीदा का मकसद कुछ और ही था। वो चाहती थी कि आयशा का रिश्ता किसी अमीर घराने में हो ताकि जायदाद पर कब्जा किया जा सके। इसीलिए रशीदा ने यह मंसूबा बनाया था कि पहले आयशा की शादी अली से करवाई जाए, फिर जायदाद के हुसूल के बाद आयशा और बशीर की शादी करवा दी जाए। रशीदा मजीद बताते हैं कि आयशा और बशीर के साथ मिलकर अली पर कातलाना हमला भी उन्होंने ही करवाया था। कुछ दिनों बाद अली बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने छोटे भाई हसन और बहन ज़ैनब को दिल की गहराइयों से माजरत करता है। अपनी पिछली गलतियों का एतराफ करते हुए वो दोनों को साथ लेकर बड़ी हवेली वापस आ जाता है। हवेली में एक नई शुरुआत होती है जहां माजी की तलहियों, धोखे और नफरत के बजाय मोहब्बत और एतमाद का हलबा होता है। रशीदा, आयशा और बशीर को अदालत में इनके जुर्म की सजा दी जाती है और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। अली और हसन दोनों की शादियां हो चुकी थी। ज़ैनब अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और अब इसकी शादी की तैयारियां शुरू थी।
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، وقت کے انصاف سے بچ نہیں سکتا، اور جب سچ عیاں ہوتا ہے تو جھوٹ خود ہی اپنی موت مر جاتا ہے۔